Hello, I am Aniket from Tarkashastra Academy. Welcome to the first session of Innovation and Entrepreneurship. So, we are making a free video series for Innovation and Entrepreneurship. For CMAT exam, it is a new section on which you are going to have 20 questions. So, your 20 questions के लिए total we are going to spend 10 sessions. So, I'll give you the link about the introduction of these free videos here. The link will be provided here. You can watch that video and then you will understand the course structure which we are going to follow. Okay, so today is the first session, which is business terminologies. So I know I'm a bit late to post this video because I could have posted it at 7 p.m. but I was myself not convinced about the delivery of the video. I was not convinced about the content of the video which I was going to post. Okay, so थोड़ा सा time लग गया उसमें. It is also one more thing. Many students are calling us कि बोल रहे हैं कि थोड़ा जल्दी course complete करो. We can do that, but then you will get mediocre content, and उससे आपकी भी अच्छे से पढ़ाई नहीं होगी, and हमारा भी satisfaction नहीं रहेगा. ठीक है? So if you want a genuine content, well researched content, तो फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा. जो आज का वीडियो 7 बजे आना चाहिए था, थोड़े 12 बज गए, चलेगा. But you will get a good content. At least अभी it is not a mediocre content according to me. है ना? अभी वो अच्छा है बुरा है वो तो आप डिसाइड करोगे. But I feel satisfied after putting in the effort in making this one session. Okay, like these we are going to make 10 sessions. So these 10 sessions will cover the complete syllabus which for innovation and entrepreneurship. Your target out of 20 questions should be 12 to 14 questions. Okay, CMAT innovation and entrepreneurship, I am not expecting it to be a very difficult section. It will be a very easy or manageable section. है ना? 12 क्वेश्चन तो आप मैनेज कर ही लोगे with your basic knowledge of of business and entrepreneurship. ठीक है ना? तो business terminologies इसके ऊपर आपका first session. Let us start with it. I have tried to make the MCQs out of it. ठीक है, MCQs के फॉर्मेट में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं यहाँ पे. रीजन बिहाइंड दैट इज कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़ा सा उसका आइडिया आ जाए. ठीक है, इफ यू वांट टू जॉइन द फुल कोर्स फॉर CMAT which includes our QA, LRDI, verbal ability, then GK session, GK videos we post on our YouTube channel. If you want to join the full course, you can connect with us. We provide classroom coaching in Pune. Then online coaching, if you want that, we can provide that. If you want only the recorded sessions, you can purchase that. If you want only the test series, you can do that. If you want only the books, you can do that. If you want any one of these three, or if you want to have a combined product, you can do that as well. So everything will be provided and you will get everything in detail, well researched and genuine content. Okay, that is what we aim for, कि आपको दे तो अच्छा कंटेंट दे, नहीं तो ना दे. ठीक है, मतलब आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, हमारा भी टाइम वेस्ट. ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट विद दिस कंटेंट. इसमें बिजनेस टर्मिनोलॉजीज पहले मैं डायरेक्टली एक्सप्लेन करने वाला था, बट नाउ आई हैव कन्वर्टेड इट इनटू MCQs. ठीक है, स्टार्टिंग के 5-6 क्वेश्चंस या 2 स्लाइड्स मैंने थोड़े से इजी रखे हैं. Then I'll increase the level of the questions. ठीक है ना? तो first is the exchange of goods or services for money is sales. है ना? Exchange of goods or services for money is sales. है ना? Sales करोगे मतलब money के बदले अगर तुम goods या service दे रहे हो, that means sales you are doing. The price at which the price it costs a business to परचेस वन प्रोडक्ट इज कॉल्ड सेल्स. तो नहीं होगा, प्रॉफिट भी नहीं होगा, कमीशन भी नहीं होगा, डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रहेगा. ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ द ऑप्शंस विल हेल्प यू अ लॉट. है ना? क्योंकि ये काफी कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ, जहाँ पे एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शंस विल हेल्प अ लॉट. डबलिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू हेल्प डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस इज कॉल्ड. डबलिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स मतलब कॉस्ट प्राइस is 50, selling price is 100.
So what is this? Doubling of cost price to determine the selling price. It is known as keystoning, and it is known as keystoning. ठीक है? What is it called when payment is made based on percentage of sales? What is it called when payment is made on percentage of sales? It is nothing but commission. अभी कोई एजेंट है, उसका 10% कमीशन है. 10% कमीशन है मतलब अगर उसने 1 लाख का बिजनेस किया, उसका 10% कमीशन मतलब इट इज परसेंटेज ऑफ सेल्स ओनली ना. ठीक है. अमाउंट द अमाउंट द बिजनेस मेक्स बिफोर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट, है ना. द अमाउंट द बिजनेस मेक्स आफ्टर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड प्रॉफिट. सिंपल एकदम. नेक्स्ट, what is the group of customers called that a business has decided to aim at promotions, its promotions at? It is target market, है ना. Also, while explaining you these questions, मैं कभी हमारे बिजनेस का आपको एक थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दूंगा, कभी आपको कोई दूसरा बिजनेस का एग्जांपल दूंगा, so that you understand it better. ठीक है. What is the group of customers called that a business has decided to aim its promotion at? It is the target market. ठीक है. अभी टारगेट मार्केट का अगर एक एग्जांपल लूं, लेट अस से अ कैट कोचिंग इंस्टीट्यूट का टारगेट मार्केट क्या रहेगा? टारगेट मार्केट रहेगा 20 से 25 ईयर के स्टूडेंट्स, है ना. 20 से 25. नाउ इट इज पॉसिबल कि अ स्टूडेंट हु इज 28 years old will also give a CAT exam, बट देन मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स अपना टारगेट मार्केट ये रहेगा कि भाई 20 से 25 इयर्स के स्टूडेंट्स, है ना. या फिर एक इंश्योरेंस कंपनी है जो सिर्फ कार इंश्योरेंस करती है, तो उनका टारगेट ऑडियंस कौन रहेगा? कार ओनर्स, है ना. वो बाइक ओनर्स को थोड़ी टारगेट करे, है ना. उस तरीके से मैं बात कर. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, है ना. तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट जरूरी है क्या? नहीं, इट इज फॉल्स, है ना. कॉस्ट प्राइस कुछ भी रहे, हम हमारे हिसाब से सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हैं. ठीक है. व्हेन अ पर्सन गेट्स पेड कमीशन, द मोर दे सेल द लेस मनी दे विल रिसीव इन देयर पे चेक. ये तो गलत हो गया ना. जितना ज्यादा सेल करोगे लेस मनी दे विल रिसीव इन देयर पे चेक, गलत है ना. जितना ज्यादा सेल करोगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा. सो इट इज फॉल्स, है ना. कमीशन क्या है? 10% कमीशन. ज्यादा सेल्स करोगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा, कम सेल्स करोगे तो कम पैसा मिलेगा. नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ सेल्स इज नीडेड टू कैलकुलेट द कमीशन. ट्रू, है ना. बिकॉज सेल्स इट कमीशन इज व्हाट? परसेंटेज ऑफ सेल्स ओनली ना. कमीशन इज परसेंटेज ऑफ सेल्स. तो सेल्स कितना हुआ ये आइडेंटिफाई करेगा ही ना, कमीशन कितना हुआ है उसके लिए. ठीक है. To calculate sales, you must know the cost of goods sold. Correct, है ना. Cost of goods sold. True. ये तो लगेगा ही ना तुमको. To calculate profit, you must know how much you had in sales. Correct है. Profit निकालने के लिए मेरे को selling price and cost price दोनों चाहिए. तो how much you have done sales ये तो लगेगा ही आपको. Next, if the profits are negative, it means expenses are more than profits are negative, expenses are more than sales. Correct है. Sales are more than expenses नहीं, selling prices are too high नहीं, profit don't matter, ऐसा भी नहीं, है ना. अभी आपको लग रहा होगा कि सर कितना बच्चा बच्चा चीजें पढ़ा रहे, इतनी बेसिक चीजें पढ़ा रहे. मैं करूंगा, आपकी हवा टाइट करूंगा, टेंशन मत करो. लोग अभी तो बेसिक चल रहा है, आगे थोड़ा सा डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजीज आएगी तब आपकी हवा टाइट होगी, टेंशन मत लो, है ना. आपको सिर्फ सुंदर सुंदर सिनेरियो दिखाना काम नहीं है, जो लेवल एग्जाम में एक्सपेक्टेड है वो पढ़ाना हमारा काम है. तो इट इज नॉट अवर ड्यूटी टू मेक यू हैप्पी, इट इज अवर ड्यूटी टू गिव यू द अप्रोप्रिएट कंटेंट दैट इज नीडेड इन द एग्जाम. ठीक है. कमीशन, कमीशन इज अ expense. Money is going out of the company na. Commission is an expense. Sales would be categorized as income. Money is coming into the company. ठीक है.
Next, what is the difference between the market value of a stock and the loan a broker makes? It is a margin, है ना? Broker अभी Zerodha is a broker, है ना? Zerodha के ऊपर 0.1 मार्जिन या 20 रुपए मार्जिन रहता है. मतलब क्या? It is मतलब जो भी तुम्हारा मार्केट वैल्यू है या फिर जो भी तुमने परचेज किया है उसका 0.1% मार्जिन Zerodha को मिलेगा. ठीक है? So that is your margin. What is the another term for impact cost? Impact cost is impact cost का another term would be monetary cost. ठीक है, अब ये क्या है? बस सीधा नाम है, impact cost, monetary cost. At what price does a market order buy or sell? At what price does a market order buy or sell a security? अभी अगर आप ये किस में गए हैं, हम थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में घुस गए हैं कि what price market order would buy or sell security. So it will sell, buy or sell at a current trading price. It will buy or sell at current trading price. ठीक है? Next. अच्छा, अरे गड़बड़ हो गई. What is the another term for price impact cost? Price impact cost is nothing but market impact cost. है ना? Price impact cost is nothing but market impact cost. यहाँ पे गड़बड़ होगी. Priced impact cost या फिर market impact cost मतलब कैसे कि यार सपोज करो हेयर सलून है, हेयर सलून 1, हेयर सलून 2, हेयर सलून 3. दिस इज अ न्यू हेयर सलून. यहाँ पे हेयर सलून में बाल काटने के होते 100 रुपए. यहाँ पे ये वाले हेयर सलून में बाल काटने के होते 80 रुपए. ये तीसरा वाला हेयर सलून 70 रुपीज में हेयर कट करेगा. क्यों? क्योंकि इट इज अ मार्केट इम्पैक्ट कॉस्ट. ओके, इट इज अ मार्केट इम्पैक्ट कॉस्ट क्योंकि वो मार्केट ने डिसाइड किया. ये खुद का सेलिंग प्राइस, खुद का कॉस्ट प्राइस देख के या खुद का प्रॉफिट मार्जिन देख के सेलिंग प्राइस नहीं डिसाइड कर रहा है, कॉस्ट इम्पैक्ट डिसाइड नहीं कर रहा है. इट इज वो मार्केट का एनालिसिस करके कॉस्ट डिसाइड कर रहा है. ठीक है? नेक्स्ट, व्हाट इज द करंट बुक वैल्यू of an asset or liability? What is the current book value of an asset or liability? It is nothing but a net book value. What is the total investment minus depreciation? It is nothing but net investment. है ना? Total investment minus depreciation. अभी देखो, एक कार लिया तुमने 50 लाख का, है ना? आप लोग बड़े लोग हो, है ना? देन 10% से वो डेप्रिशिएट हो गए, तो अभी कार की वैल्यू 45 लाख है. So that is your net investment. The periodic review of companies transaction is done through or done through dividends तो नहीं. Periodic review of companies financial transaction, dividends नहीं, portfolio नहीं, inter office mail भी नहीं, audit. Audit करना मतलब कंपनी के financial transaction चेक करना. ठीक है? Periodic review. ठीक है ना? तो ये कैसे? Elimination से आपको आंसर मिलेगा. After tax profit margin reflects the ratio of net income to what? After tax profit margin reflects the ratio of net income to net sales. Net income to net sales. ठीक है? A contract that prohibits an employee from switching to a competing company is called what? Non-competitive agreement. It is a non-competitive agreement. मतलब अभी देखो, आदित्य सर ये मेरे बॉस है, उन्होंने मेरे ऊपर एक नॉन कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट डाल दिया कि भाई मैं अगर आगे जाके तर्कशास्त्र छोड़ के जाता हूँ तो मैं कोई भी कैट कोचिंग या एमबीए एंट्रेंस एग्जाम कोचिंग के इंस्टीट्यूट में जाके नहीं पढ़ा सकता. दैट इज द नॉन कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट व्हिच ही हैज इम्पोज्ड ऑन मी. ठीक है? नेक्स्ट, अब बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट वुड बी रिकंसिडर्ड व्हाट टाइप ऑफ एसेट? A building and equipment would be considered as a real asset. It is not a virtual asset. It is definitely not a inflated asset. है ना? And obligatory asset मतलब वो obligation तो नहीं है ना, है ना? You can anytime sell it. ठीक है? तो it is a real asset. ठीक है? Next. Another name for New York Stock Exchange is the Big Board. है ना? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का अलग नाम है द बिग बोर्ड. Which term refers to something which cannot be redeemed?
कैनॉट बी रिडीम इज नॉन रिडीमेबल, नॉन रिकोर्स तो नहीं, नॉन इरेडीमेबल नहीं रहेगा. मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स विल मार्क इरेडीमेबल और नॉन रिडीमेबल. तो नॉन रिडीमेबल इज करेक्ट, इरेडीमेबल सही नहीं है, नॉन रिफंडेबल भी सही नहीं है. नॉन रिफंडेबल इज कंप्लीटली डिफरेंट. ठीक है. व्हाट इज परचेजिंग अ लार्ज परसेंटेज ऑफ intermediate components for outside suppliers? It is nothing but outsourcing. It is nothing but outsourcing. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आउटसोर्सिंग का एक सिंपल एग्जाम्पल दूं. कोई एक आईटी फर्म है इनका, या फिर कोई एक बैंकिंग फर्म है, इनको एक अपना सॉफ्टवेयर बनाना है. सो दे आउटसोर्स इट टू आईटी फर्म, है ना. तो आईटी फर्म ने दे हैव purchasing a large percentage of intermediate components. So IT firm has hired a large percentage of IT professionals या फिर coders who will code that software and give it to bank, है ना. So that is outsourcing. So bank, what the bank has done, बैंक की सॉफ्टवेयर बनाना ये बैंक की एक्सपर्टीज नहीं है, उन्होंने वो आउटसोर्स कर दिया है. तो जो आउटसोर्स कंपनी है उनकी वो एक्सपर्टीज है या फिर उनके पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन अ लैंडलॉर्ड एंड अ रेंटर? तो लैंडलॉर्ड एंड अ रेंटर इज लीज एग्रीमेंट करते हैं, है ना. एस्क्रो अकाउंट नहीं रहता है. एस्क्रो अकाउंट अगर आप देखोगे तो एस्क्रो अकाउंट अभी रिसेंटली पढ़ा था मैंने. एस्क्रो अकाउंट इज यूज्ड फॉर क्या, बिल डिस्काउंटिंग, है ना. बिल डिस्काउंटिंग के लिए एस्क्रो अकाउंट. अभी बिल डिस्काउंटिंग क्या रहता है वो भी मैं बता देता हूँ. बिल डिस्काउंटिंग शॉर्ट में बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करो. ठीक है. बिल डिस्काउंटिंग और इनवॉइस डिस्काउंटिंग भी बोलते हैं. लेट अस से अभी एग्जांपल लूं अगर मैं. सो देयर इज अ बिस्किट मेकिंग कंपनी विच इज पार्ले, है ना. पार्ले क्या बनाती, पार्ले जी बनाती, है ना. पार्ले जो है वो तो बिस्किट बनाती है, इनको चाहिए मैदा. बिस्किट बनाने के लिए मैदा चाहिए. आई एम XYZ कंपनी, आई हैव गिवन देम 5 लाख रुपीस का, आई हैव गिवन देम 5 लाख रुपीस का मैदा. ठीक है. दे विल गिव मी एन इनवॉइस of 5 lakh rupees, okay, and a time period of 3 months to pay it, and a time period of 3 months to pay it. ठीक है. बट ये XYZ कंपनी को तो अभी चाहिए पैसा, है ना. तो व्हाट दे विल डू, ये जो इनवॉइस है ये इनवॉइस लेके वो जाएगी बैंक के पास. इनवॉइस लेके जाएगी बैंक के पास. तो इनवॉइस देंगे बैंक को 5 लाख रुपीस का, बैंक इनको देगा 4.9 लाख रुपीस, एंड फिर ये पार्ले जो है ये बैंक को 5 लाख रुपीस दे देगा, जिससे बैंक का भी 10,000 का फायदा हो गया, एंड ये जो XYZ कंपनी है इनको भी 4.9 लाख रुपीस इमीडिएटली मिल गए. ठीक है ना. तो इनवॉइस डिस्काउंटिंग अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा. तो वो जो इनवॉइस डिस्काउंटिंग है वहां पे बैंक को कंपनी का एस्क्रो अकाउंट बनाना. ठीक है. लैंड इक्विटी नहीं बनाते, रेंटर्स इंश्योरेंस भी नहीं करते. ठीक है. नेक्स्ट इज डिवाइडिंग इन्वेस्टमेंट फंड्स अमंग अ वैरायटी ऑफ सिक्योरिटीज विद डिफरेंट रिस्क. मींस दैट यू हैव डन व्हाट, यू हैव डाइवर्सिफाइड योर पोर्टफोलियो, है ना, अमंग वैरायटी ऑफ सिक्योरिटीज विद डिफरेंट रिस्क, है ना. अगर आपने एफडी में भी डाला, बॉन्ड्स में भी डाला, फिर आपने स्टॉक्स में भी डाले, आपने म्यूचुअल फंड में भी डाला है, आपने क्रिप्टो में भी डाला है ना, आपने एनएफटी में भी डाल दिया. तो what you have done, you have diversified your portfolio. Investors usually short sell when they think the price of the stock is going to do what? The price of the short stock is going to go down, है ना. मतलब शॉर्ट सेल मतलब पहले सेल कर देते एट हायर प्राइस, 100 रुपीज पे सेल कर दिए, एंड फिर बाय करना पड़ता है उनको 90 रुपीज, है ना. स्टॉक मार्केट का अगर आपको नॉलेज रहेगा तो ये आपको समझ में आएगा शॉर्ट सेल क्या रहेगा. तो पहले, so the first they are selling at 100 rupees and later they are buying at 90 rupees, है ना. It has to be done in intraday transaction only in India. ठीक है. इंडिया में ये इंट्राडे ट्रांजैक्शन में ही करना होता है. ठीक है.
तो शॉर्ट सेल, अगर मैं शॉर्ट सेल करने वाला हूं तो मैं कब करूंगा, जब मेरे को पता है कि यार प्राइसेस ये नीचे जाने वाली है तब। ठीक है। अ पर्सन हु इज लिमिटेड बाय consistent single source of income is often said to live on what? He is often said to live on fixed income. What is company's CFO in charge of? He is in charge of finances. ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं. So he is in charge of finances. CFO is Chief Finance Officer. So he is in charge of finances. Making a list of company's physical assets involves doing what? Inventory. है ना, इन्वेंट्री इट इंक्लूड्स मशीनरी, सब कुछ इंक्लूड हो गया, मशीनरी इंक्लूड हो गई उसमें, उसमें आपका पेपर कुछ रहेगा, आपके बुक्स कुछ रहेंगे, एवरीथिंग आपका एसेट्स मतलब बिल्डिंग बिल्डिंग जो रहेगी, ऑल ऑफ दोज आर इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री. ठीक है. व्हाट टर्म रेफर्स टू मूवेबल गुड्स सच एज कार, टेक्सटाइल एंड अप्लायंसेस? दे आर नोन एज मर्चेंडाइज. है ना, कार्स, टेक्सटाइल, अप्लायंसेस जो मूवेबल है, they are known as merchandise. Selling price, selling items illegally is often referred to as selling them where? Selling them on over the counter नहीं, trunk sale नहीं, selling them on the black market. अगर आपने मनी हाइस्ट देखा होगा तो उसमें जो रियो ने मोबाइल फोन, रियो और टोक्यो ने मोबाइल फोन लिया रहता है, एंड हेलसिंकी, रियो, टोक्यो एंड हेलसिंकी, नहीं इनफैक्ट रियो एंड हेलसिंकी ने जो मोबाइल लिया रहता है, दे हैव परचेज्ड इट फ्रॉम ब्लैक मार्केट. And they have purchased it from the black market means they have purchased it illegally. Taking back a possession for non-payment is termed a buyback or repo. है ना, टेकिंग बैक अ पोजेशन फॉर नॉन पेमेंट. है ना, मतलब अभी मान के चलो कि मैं कहीं पे रेंट पे हूँ, मैं रेंट पे रहता हूँ, मैंने 5-6 महीने के लिए रेंट ही नहीं पे किया, तो मेरा घर मालक आएगा और बोलेगा तुम निकलो. So what he is doing buyback or repo. ठीक है. What is the difference between a day's last trade and the previous day's last trade? So it is nothing but net change. It is nothing but net change. For example, Wipro का स्टॉक कल 300 पे क्लोज हुआ, आज, है ना, कल मतलब कब, 20 तारीख को 300 पे क्लोज हुआ, 21 तारीख को 310 पे क्लोज हुआ, तो द नेट चेंज इज ऑफ 10 rupees. Stock trading done by officers or directors of a company is called insider trading. अभी मान के चलो कि मुकेश अंबानी रिलायंस के स्टॉक्स में ट्रेड करने लग गए, तो दैट इज इनसाइडर ट्रेडिंग ना, क्योंकि वो पहले कम प्राइस में लेगा, फिर ऐसी कोई तो भी पॉलिसी लाएगा जिससे प्राइस बढ़ जाएगी एंड फिर बेच देगा, तो वो तो इनसाइडर ट्रेडिंग होगी ना. ठीक है. व्हाट इज द प्राइस पेड फॉर बोरोइंग मनी? व्हाट इज द प्राइस बोरोइंग मनी, मतलब अगर तुमने किसी से बैंक से पैसा लिया या दोस्त से पैसा लिया, तो तुम उसको क्या प्राइस देते हो? इंटरेस्ट देते हो ना, है ना, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना. इंटरेस्ट इज द प्राइस विच यू पे फॉर बोरोइंग द मनी. नेक्स्ट इज अ पर्सन हु मैनेजेस अ पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड व्हाट? ही इज इन्वेस्टमेंट मैनेजर. है ना, जैसे म्यूचुअल फंड मैनेजर रहता है, ही इज नथिंग बट एन इन्वेस्टमेंट मैनेजर. तुम उसको देते हो 50,000 रुपए दे दिया, तो भाई मेरा investment amount. So he is an investment manager. A bill produced by a seller of goods or services and submitted to the purchaser is what? Bill of rights, creed, invoice. Simple. Bill produced by a seller, मतलब अगर आप कोई दुकान में जाते हो, वो तुमको बिल देता है, तो वो बिल को हम कहते क्या है? इनवॉइस. ठीक है. A market with high level of trading activity is considered what? It is a liquid market. जिसमें जैसे निफ्टी, सेंसेक्स, दे आर वेरी लिक्विड मार्केट, वहां पे हाई लेवल ऑफ ट्रेडिंग होती है. ठीक है. अ कंपनीज पर्पस इज स्टेटेड इन व्हाट शॉर्ट पैराग्राफ? तो कंपनीज पर्पस मतलब इंडेक्स तो नहीं रहेगा, मिशन स्टेटमेंट ही रहेगा. बाय लॉ नहीं, आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो नहीं, आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन में तो वो तो डॉक्यूमेंट्स होगी कंपनी के. मिशन स्टेटमेंट में ही तो कंपनीज पर्पस लिखा रहेगा. व्हाट इज अनदर नेम फॉर पार वैल्यू?
par value means maturity value. Par value means maturity value. A business that is open 24/7 is closed how many days per week? It is closed 0 days, है ना. 24/7 मतलब 24 घंटा 7 दिन, तो कभी बंद नहीं रहता है ना. 24/7 मेडिकल शॉप्स देखे होंगे आपने, वो कभी बंद नहीं रहते. The best known US index of stock is reported by whom? It is reported by Dow Jones Industrial Average. And it is reported by Dow Jones Industrial. It is not reported by New York Stock Exchange, not by Abercrombie and Fitch, not by Wall Street. It is reported by Dow Jones Industrialist. ठीक है. Next, the document that hasn't been finalized is often stamped what? It is nothing but a draft. है ना. अभी तक फाइनलाइज्ड ही नहीं हुआ, इट इज ड्राफ्ट, है ना. मेल आपका फाइनलाइज नहीं हुआ तो वो ड्राफ्ट रहता है ना आपका. कॉन्फिडेंशियल तो नहीं रहेगा, रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगा, अनक्लासिफाइड भी नहीं रहेगा. द अमाउंट दैट वुड चेंज हैंड्स बिटवीन टू पार्टीज both aware of the relevant facts is what? The amount that would change hands between two parties both aware of the relevant facts is what? Cost and feasibility नहीं, fair market price. fair market price मतलब अभी फेयर मार्केट प्राइस मतलब अगर मैं एक फ्लैट खरीदने जाता हूँ, है ना, अगर मैं एक फ्लैट खरीदने जाता हूँ तो फ्लैट खरीदने के लिए बिल्डर ने मुझसे लिया 1 करोड़ रुपए, है ना, एंड मैंने भी पे किया 1 करोड़ रुपए, बिकॉज आई नो दैट इट इज द फेयर मार्केट प्राइस, है ना. आई एम अवेयर अबाउट ऑल द रिलेवेंट फैक्ट्स एंड दैट इज व्हाई आई एम पेइंग 1 करोड़ रुपीज and that is why it is the fair market price. ठीक है. Next, the repayment of loan by installment is termed as amortization. Repayment of loan is termed मतलब installment से अगर आप पेमेंट करते हो तो amortization कहते हैं. In business, what does it mean to mature? To mature means to expire, है ना. To mature means to expire. ठीक है. मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स विल से टू पे ऑफ डेट्स, है ना. मेरे को भी यही आंसर लगा था, गूगल किया, पता चला कि इट इज नॉट टू पे ऑफ डेट्स, इट मींस टू एक्सपायर. ठीक है. द डेट रेशियो मेजर्स द टोटल डेट divided by, now many commerce students will know this, what is debt ratio? The debt ratio is nothing but total debt upon total assets, है ना. debt ratio is nothing but total debt upon total assets. What is the loan? What is the another name for loan of $1 billion or more? It is nothing but jumbo, है ना. 1 बिलियन से $1 बिलियन से ज्यादा अगर तुम लोन ले रहे हो, that is nothing but a jumbo. What is the process of creating a depiction of reality? Depiction of reality मतलब मैनेजिंग तो नहीं रहेगा, रियल टाइम नहीं रहेगा, रियल मॉडलिंग, है ना. है ना. मतलब डेपिक्शन ऑफ रियलिटी, एक बिल्डर है, वो एक बिल्डिंग का मॉडल बना के रखता है ना, है ना. एक बिल्डिंग का मॉडल बना के रखता है छोटा सा, है ना. एक्चुअल बिल्डिंग ये बड़ी रहने वाली, वो ऐसा छोटा सा मॉडल बना के रखता है. सो दैट इज डेपिक्शन ऑफ रियलिटी. व्हाट काइंड ऑफ गोल्ड इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज एज फाइनेंशियल एसेट? प्राइवेट गोल्ड तो नहीं बोल सकते उसको, मॉनिटरी गोल्ड शायद, पब्लिक गोल्ड नहीं, अनक्लेम्ड गोल्ड भी नहीं, तो मॉनिटरी गोल्ड ही बोलेंगे, है ना. बाय एलिमिनेशन यू कैन कम अप टू द आंसर्स. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ टाइम इट टेक्स टू रिकवर द इनिशियल कॉस्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट, है ना. इनिशियल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, इट इज नथिंग बट द पे बैक ड्यूरेशन, है ना. पे बैक ड्यूरेशन, अगर मान लो आपने एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला, आपने रेस्टोरेंट खोलने के लिए 10 लाख रुपए डाला, फिर आपको 3 महीने बाद 10 लाख रुपए का बिजनेस हुआ एंड आपको 5 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ, मतलब 5 लाख रुपए आपके जेब में गए, तो आपका पे बैक हो गया क्या? नहीं. आपका 6 महीने बाद 20 लाख रुपए का बिजनेस हुआ एंड आपके जेब में 10 लाख रुपए गए, दैट इज योर पे बैक. ठीक है. व्हाट इज दी
नहीं, what nickname did high yield bonds get in the 1980s? They were known as junk bonds, है ना? They were known as junk bond. They were known as junk bonds. In a bear market, what are prices doing? Prices are declining, no? Prices are definitely not splitting. है ना? Splitting of share, IRCTC का share अभी split हो गया. So that is not what bear market is doing. है ना? दो टाइप के मार्केट्स रहते हैं, एक बेयर मार्केट रहता है, बुल मार्केट रहता है. बुल मार्केट ऊपर ऊपर जाता है, बेयर मार्केट नीचे नीचे आता है. बुल मार्केट क्यों? क्योंकि एक बुल को देखो, एक सांड बुल को देखो, वो अपने सिंग से ऊपर उछालता है ना? एक सांड के सामने आपके एक आदमी रख दो या कोई ऑब्जेक्ट रख दो, वो अपने सिंग से ऊपर लेके जाता है ना? अपने जो उसके सर के ऊपर जो सिंग रहते हैं उससे वो ऊपर लेके जाता है. तो बुल इज नथिंग बट इट इज टेकिंग अप. तो बुल मार्केट मतलब ऊपर जाना. बेयर मतलब कभी भी कोई बेयर देखो, उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखो, वो पंजे से उसको नीचे करने की कोशिश करता है. तो नीचे करने की कोशिश करता है मतलब डिक्लाइन करता है. ब्रेकिंग इन हाफ नहीं है, एस्केलेटिंग भी नहीं. A company's positive resource are considered what? Company's positive resource are considered as assets. जैसे तर्कशास्त्र का एसेट है आदित्य सर, क्योंकि वो बहुत जबरदस्त काम करते हैं, है ना? अगर मैं निगेटिव रिसोर्स हूँ तर्कशास्त्र के लिए, मैं अगर कुछ काम नहीं करता हूँ, देन आई विल बी कंपनीज लायबिलिटी, है ना? क्योंकि कंपनी को मेरे को सैलरी देना पड़ेगा, बट मैं काम कुछ नहीं कर रहा, तो मैं कंपनी के ऊपर बोझ हूँ ना, तो मैं कंपनी का लायबिलिटी. ठीक है ना? एसेट इज पॉजिटिव रिसोर्स. What acronym, what does the acronym WAL stand for? WAL stands for weighted life average, है ना? ये कहाँ पे? इंश्योरेंस कंपनीज में आपको ये WAL का यूज दिखेगा, weighted life average. ठीक है? The tendency to do less work when the return is smaller is known as shrinking. ठीक है ना? मतलब अगर मान के चलो कि मैंने कोई एक सर्विस शुरू किया है या फिर कुछ इंडस्ट्री में काम करता हूँ जिसमें मैं बहुत मेहनत करता हूँ, वहां से पैसा कम आता है, तो मैं क्या करूंगा? माई टेंडेंसी वुड बी टू डू लेस वर्क, सो इट मीन्स श्रिकिंग. ठीक है? नेक्स्ट इज अ पीस ऑफ पेपर प्रोवाइडिंग, नहीं, अ पीस ऑफ पेपर प्रूविंग ओनरशिप ऑफ अ स्टॉक इज कॉल्ड, कूपन तो नहीं कहते उसको, सिक्योरिटी कहते हैं. फंडिंग सर्टिफिकेट डिप्लोमा भी नहीं. सो सिक्योरिटी इज योर आंसर, है ना? जो पहले तो अभी मतलब मटेरियलाइजेशन ऑफ स्टॉक्स हो गया है ना? मतलब डिजिटलाइजेशन ऑफ स्टॉक्स हो गया है. पहले स्टॉक्स ऐसे नहीं मिलते थे ना, अपने को पेपर मिलता था. सो दैट वाज सिक्योरिटी. When one company compares its offering to other like companies, what are they setting? They are setting benchmark, है ना? They are not setting portfolio proxy या index भी नहीं, they are setting benchmark. ठीक है? What does it mean to scalp a trade? Scalp a trade मतलब take no prisoners तो नहीं, change original options नहीं, get a huge trade for small gains would be the answer. मतलब कि तुमने 100 रुपए का स्टॉक लिया, 101 रुपए में बेच दिया, है ना? यू आर ट्रेडिंग फॉर स्मॉल गेन्स. ठीक है? Which kitchen term describes standard terms and conditions? It is nothing but boilerplate, है ना? Standard terms and conditions रहेंगे. If you come to our industry or if you join our company, these are the standard terms and conditions. Means these are the boilerplates. ठीक है? When an investor borrows to buy back more shares using the shares themselves as collateral, he buys on what? He buys on margin. He buys on margin, है ना? बहुत लोगों को लगता है leveraged out buy out, बट ये आंसर नहीं है ना? ये मतलब लगता है कि यार leveraged buy out रहेगा, कुछ तो भी फैंसी वर्ड दिख रहा, ये मार्क करता हूँ. मेरे को भी लगा था leveraged buy out आंसर रहेगा, बट फिर सर्च किया तो मार्जिन आंसर आता है उसका. ठीक है? तो यूजिंग द शेयर्स देमसेल्व्स एज कोलेटरल, मान के चलो कि मेरे पास 10% शेयर्स है कंपनी के, किसी कंपनी के,
है ना, मेरे पास मान के चलो तर्कशास्त्र के 10% शेयर्स है, मेरे को और 3% शेयर्स लेने हैं, बट ये 3% शेयर्स लेने का पैसा नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, ये 10% शेयर्स को कोलेटरल रख के लोन लूंगा, एंड ये लोन से फिर ये 3% शेयर्स खरीदो, है ना। तो कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए कंपनी के शेयर से कोलेटरल रख दिया, मतलब वो क्या हो गया, वी आर बाइंग इट ऑन मार्जिन. When prices go up, the stock market is said to have a what? Dip तो नहीं, prices go up तो dip तो नहीं, regression भी नहीं, purge भी नहीं, rally, है ना. अपन बोलते हैं ना कि यार वो स्टॉक ने क्या रैली किया आज, है ना, टाटा मोटर्स ने क्या रैली किया है एक साल में, 60 रुपए का स्टॉक 500 रुपए पे पहुंचा दिया, है ना. तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज रैली. नेक्स्ट, इफ योर रिस्क कवर, है ना, बिल्कुल रिस्क लेने का नहीं बाबा, ऐसे वाले हो, यू प्रेफर इन्वेस्टमेंट्स दैट हैव व्हाट, दैट हैव लोअर रिस्क, है ना. आप फिर आपको ऐसा लगता है कि भाई बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है, तो आप क्या करोगे, आपका पैसा एफडी में डालो, लोएस्ट अमाउंट ऑफ रिस्क है वहां पे, ठीक है. एवर चेंजिंग रिस्क पे नहीं तो डालोगे, हायर रिस्क हायर रिटर्न्स पे भी नहीं डालो. व्हाट इज द टर्म फॉर द टॉप लिमिट ऑफ इंटरेस्ट रेट और सैलरी? इट इज नथिंग बट अ कैप. स्केल नहीं, कर्व नहीं, कैपिटल, कैप, है ना. दिस इज द कैप, दिस इज द मैक्सिमम विच यू कैन गेट, दिस इज द कैपिंग ऑन द सैलरी, है ना. मतलब अगर कोई एक आईटी प्रोफेशनल टीसीएस से इंफोसिस जा रहा है ना, टीसीएस से इंफोसिस जा रहा है मैनेजर लेवल पे, है ना, टीसीएस से इंफोसिस जा रहा है मैनेजर लेवल पे, तो मैनेजर, तो एचआर उसको बोलेगी, वो मैनेजर बोलेगा कि मेरे को 15 लाख का पैकेज चाहिए, तो एचआर उसको बोलेगी कि हमारी सैलरी कैप फॉर मैनेजर इज 13 लाख रुपीज, तेरे को कैसे 15 लाख दे, ठीक है ना. एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो एक्वायरिंग और improving long-term company assets is what type of expenditure? It is nothing but capital expenditure, है ना. लॉन्ग टर्म कंपनी एसेट्स जो है वो अगर, है ना, मतलब एक मान के चलो रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो पहले रेंट पे जेसीबी यूज करती थी, अभी उसने वो जेसीबी एक्वायर कर ली बिकॉज इट इज अ लॉन्ग टर्म कंपनी एसेट, तो उसने वो क्या किया है, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है. रिमोट डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व्स राइटिंग चेक्स, चेक्स की स्पेलिंग गलत होगी, चेक्स CHEQUE, ड्रॉन ऑन बैंक्स वेयर दे आर, remote distribution involves writing checks drawn on banks where at remote locations, है ना, कॉर्पोरेट ऑफिस, नेबरहुड या सिटी नहीं, ठीक है. A return earned over a given time period is known as what kind of return? It is the real, phantom नहीं, वेरिएबल नहीं, रियलाइज रिटर्न, मार्जिनल भी नहीं, है ना. मतलब रियलाइज रिटर्न मतलब मैं तुमको बताता हूँ कैसे. 1 लाख रुपए तुमने बैंक में डाले सेविंग्स अकाउंट में, जिसके ऊपर एक 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, है ना. तो मतलब 1 साल बाद तुमको 1,04,000 रुपए मिलना चाहिए था. अगर तुम वो 1 लाख रुपए 1 ईयर के लिए रहता तो 1,04,000 रुपए मिलता था, बट अगर आप ये 6 महीने में निकालते थे तो आपको 1,02,000 ही मिलेगा, है ना. तो ये 2,000 इज योर रियलाइज्ड रिटर्न, है ना. दिस इज ईयर ऑन ईयर रिटर्न, दिस इज योर रियलाइज्ड रिटर्न. Plans to help a business regain financial health are called reorganization plans, है ना. रीगेन फाइनेंशियल हेल्थ, अभी मतलब येस बैंक जो डूब गई थी, फिर बाकी सारे बैंक्स ने उसमें पैसा डाला टू रीगेन फाइनेंशियल हेल्थ, तो उन्होंने उन्हें क्या किया, रीऑर्गेनाइजेशन प्लान्स किए, ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी हैव इन बिजनेस टर्मिनोलॉजी सेशन 1. वी आर आल्सो गोइंग टू हैव सेशन 2 ऑन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज, ठीक है. उसके बाद हम अलग अलग इसमें जाएंगे, जो स्टार्ट में वीडियो या फिर जो इंट्रोडक्शन वीडियो, इफ यू वॉच दैट, वी विल बी कंप्लीटिंग एवरीथिंग बाय 15th ऑफ मार्च. डोंट प्रेशराइज मी टू फिनिश इट बिफोर दैट, क्योंकि 15th ऑफ मार्च के पहले तो एग्जाम भी नहीं होने वाली है,
एक वीडियो देखो कि आपको कंप्लीट हो जाएगा, है ना, एक वीडियो देखो, उसके नोट्स बना के रखो, यू विल बी रेडी फॉर इट, है ना। तो आप प्रेशराइज करोगे क्योंकि 17 मार्च तक तो एग्जाम फॉर्म फिल करना है, उसके पहले तो एग्जाम होने नहीं वाला है। तो 15 मार्च तक अगर मैं कंप्लीट करूंगा तो लेट तो नहीं हो रहा है ना। इफ यू वांट मी टू फिनिश इट इन फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, वो करने के लिए कर दूंगा, फिर मीडियोक्रिटी आएगी, है ना। मीडियोक्रिटी एग्जिस्ट बिकॉज डेडलाइंस है ना। डेडलाइन नहीं दोगे तो मेरा डेडलाइन पुश नहीं करोगे, मैं अच्छा कंटेंट दे पाऊंगा। तो थोड़ा सा कंसिडर करो, ठीक है। और कोई डाउट्स है, यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन एनी वन ऑफ दिस 3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और विजिट आवर वेबसाइट tarkashastra.co.in और सेंड अ व्हाट्सएप मैसेज ऑन एनी वन ऑफ दिस 2 नंबर्स। थैंक यू सो मच। जय हिंद।